Hello, friends. Let's channelize our emotions. In the last two videos, we talked about what is emotional intelligence, how emotions erupt, and how we assess ourselves accurately. Yes, in last video, I talked about self-confidence. Here I would like to take few minutes to, conclude that self-confidence. Self-confidence has a direct correlation with self-awareness. The people who are aware about themselves, they are confident people because they know their weaknesses, they know their strengths, they know themselves accurately. That's why they are more confident. If you talk about the leaders all over the world, you will find these leaders are extremely self-confident. You talk about any entrepreneur, you talk about an army officer, you talk about a prolific cricketer, you talk about entrepreneur, you talk about excellent students, you'll find all these people have one thing common. They are confident. And it has a direct relationship with their emotional awareness. There are two concepts. One is self-confidence and another is self-efficacy. Though they both are similar. In psychology, specifically, self-efficacy has been used. It simply means whatever skill sets you have, with those skill sets, you can perform the desired work. काम जो भी आप करते हो, जो भी काम आपके लिए बना है, उस काम को करने के लिए जो कला आपके पास है, जो कोर कॉम्पिटेंसी आपके साथ है, उस कोर कॉम्पिटेंसी पर पूरा भरोसा, खुद पर एक भरोसा, आई कैन डू, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी. होता क्या है, हमारे पास कोर कॉम्पिटेंसी भी होती है, कुछ अच्छे पर्सनालिटी ट्रेट्स भी होते हैं, फिर भी खुद पर विश्वास नहीं होता. एंड माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव इज ऑल्सो एन इमोशन. सो let's be confident by knowing ourselves. Now, let's start how to channelize our emotions. Now, before coming to, channelize our emotions, let's know how to be aware because we need to have some tools. हमें कुछ tools चाहिए जिसके साथ और जिसकी मदद से हम अपनी इमोशंस को अवेयर तो हों. अब इमोशनली अवेयर हो जाइए, इमोशनली अवेयर हो जाइए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कौन से तरीके हैं जिससे मुझे इमोशनली अवेयर होना है? सो सबसे पहले लेट्स ऑब्जर्व आवर फीलिंग्स एंड रिलेट विद आवर लाइफ एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस. दैट मीन्स लेट्स ऑब्जर्व आवर फीलिंग्स. मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इमोशंस अरप्ट. Emotion erupts for few minutes. Then emotions are converted into feelings. Feelings are what feelings? Feelings are mental association of the emotions and reaction. So those feelings prolong. Those feelings prolongs for 1 hour, 2 hours, 1 day, few weeks. That is also called mood. But that mood, when that mood prolongs for long time, that becomes our self-awareness trait. That is called, emotional trait. Right? So, first thing is emotion, second is mood, third is emotional trait. वो आदमी का ट्रेट बन जाता है कि ये आदमी ज्यादातर गुस्से में रहता है, ये आदमी he is always compassionate, ये he is always calm, composed. So it becomes your trait. So सबसे पहले अपनी emotional awareness को लेने के लिए हमारा पहला टूल है, I need to observe my emotions and my experiences of life. If those experiences, what kind of experiences I am having? For example, somebody praised me. What kind of emotions arise in my, माई सेल्फ? वो किस तरह के रिएक्शंस, किस तरह के रिस्पॉन्स मेरे में से आते हैं? इफ समबडी डिसएग्री विद मी, हाउ डू आई रिएक्ट?
Do I react in the same manner, the manner somebody appreciated me? No, it will be different. So, first step is we need to observe our emotions with the experiences of the life. Second is keep a close watch on your physiology. आपको अपनी फिजियोलॉजी और बायोलॉजी दोनों पर एक नजर रखनी है, दोनों पर। अब देखिए क्या होता है, पूरे दिन में क्या मैं थका हुआ महसूस करता हूं? डू आई फील फैटीग? क्या सुबह उठते वक्त मुझे थकान महसूस होती है, या यूं लगता है कि जो नींद मैंने ली वो पूरी नहीं थी, कुछ और सोना है? और सुबह उठते ही आपका मूड कैसा है? What kind of feelings you have when you wake up early in the morning? क्या सुबह उठते ही फटाफट आप अपने शूज डालते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं, उसके बाद अपनी स्पोर्ट्स किट डालते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, रनिंग करते हैं, ट्रेडमिल पे जाते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, क्या करते हैं? या सिर्फ आप बैठकर एकदम स्टार्ट कर देते हैं सोचना, क्या हुआ, क्या करना है, कल क्या हुआ था? ये सब चीजें हमारी बॉडी से रिलेटेड है काफी हद तक। आपका पूरे दिन में आपको क्या एक्सेसिवली पसीना आता है? क्या आपकी पल्स रेट ऊपर नीचे होती है? कभी कभी टेंस मोमेंट में नो डाउट पल्स गोज अप, बट क्या वो अमूमन ज्यादा रहती है? वो पल्स की रेट कितनी है? आपका ब्लड प्रेशर कैसे रहता है? सो ये बहुत सी चीजें हैं यू नीड टू नो। You need to know your physiology. You need to know your biology, क्योंकि आपकी बॉडी बोलती है। You need to listen. और अगर उसमें आपको रेस्टलेसनेस लगती है, एंग्शियस लगती है, या फटीग है, थकान महसूस होती है, जल्दी थक जाते हो, सुबह उठने के बाद आपका मूड ठीक नहीं होता, ये सब चीजें दर्शा रही हैं कि आपकी इमोशंस सही तरीके से हैंडल नहीं हो रही। सो ये अवेयरनेस आपको जरूर रखनी है। तीसरे नंबर पे आपकी आती है कंसिस्टेंटली वॉचिंग हाउ सिचुएशन कम्स, हाउ दो सिचुएशंस में आपकी मेंटल स्टेट क्या रहती है, और फिर आपका एक्शन क्या होता है। परिस्थिति, मानसिक स्थिति, और आप किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। 3 स्टेप होते हैं। सिचुएशन आई, मेरी मेंटल सिचुएशन, मेरी मेंटल में एक बदलाव आया, और उसके बाद मैंने एक्शन लिया। अब इस चीज को आपको ऑब्जर्व करना है कि अचानक लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या मैं एलिनेटेड होता हूं या मैं उन लोगों में शामिल होता हूं? क्या मैं सॉल्यूशन ढूंढता हूं या मैं प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचता रहता हूं? क्या मैं उस फीलिंग से निकलकर यह कहता हूं कि ओके लेट गो, लेट गॉड एंड आई विल सी इट? क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने अपने जीवन में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बिकॉज इट्स अ सीजन्ड लाइफ फुल ऑफ इवेंट्स। और ये चीज देखी है कि आप एक ही दिन में बैंक्रप्सी के लेवल पर भी आ सकते हो। अभी अगर हम कोरोना का दौर देखें तो इस दौर में कितने लोग ओवरनाइटली विद इन फ्यू वीक्स उनके पूरे बिजनेस पे एक तरह का समझ ले कि एक मायूसी छा गई, कुछ भी नहीं बचा। किस तरह से उन लोगों ने उन चीजों को हैंडल किया? क्या उस परिस्थिति ने आपकी मानसिक स्थिति को हाईजैक किया? और उसके बाद फिर आपका रिएक्शन क्या आया? क्या आपने रिएक्ट किया या रिस्पॉन्ड किया? ये भी आपको हर रोज इसे आपको जानना है। इसके बाद आपका आता है एक बहुत बड़ा प्रिकॉशन है, नाइदर ऑफ द इमोशंस आर बैड, इजंट इट? सभी इमोशंस होती हैं, हम उसे गुड और बैड की कैटेगरी में ना ही डालें। दैट मीन्स यू नीड टू बी नॉन जजमेंटल टूवर्ड्स योर इमोशंस। सिर्फ उन इमोशंस को वॉच करना है, उन फीलिंग्स को अपने भीतर उठते गिरते अवेयर होना है। यू नीड टू नो अबाउट योर सेल्फ कि किस तरह से। अब जैसे फियर को ले लीजिए, जरूरी तो नहीं कि फियर गलत है। अब फियर ना हो तो आदमी अपनी गाड़ी लेकर जा रहा है, सामने से ट्रक आए, वो कहे भी आने दे ट्रक, कोई बात नहीं देख लूंगा। नो, दैट फियर सेव्स यू। अगर आप कभी रात को जंगल में जा रहे हैं या
नाइट वॉक पे जा रहे हैं या घास ऊंची है तो आप कहते हो कि यार चप्पल डाल के नहीं जाना है, कोई कीड़ा या कोई सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है. व्हाट इज दिस? अगेन अ रेलेवेंट फियर. फॉर सिक्योरिटी पर्पस यू वियर शूज. और अगर आप जंगल वॉक में जाते हैं या किसी कैंप साइट्स पे जाते हैं तो हम हाई हील और साथ में लॉन्ग बूट्स डालते हैं. सो फियर, इट्स नॉट अ बैड इमोशन, रादर इट हेल्प्स अस टू सर्वाइव. उसी तरह एंगर भी तो कुछ जगह पर जायज होता है. तो ये कुछ आपको मैंने चीजें बताई जिनको आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रखना है, राइट. एंड नेक्स्ट, मेरी इमोशंस के पैटर्न्स क्या है? पैटर्न्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पैटर्न सिंपली मींस एक सिचुएशन आई, मैंने उसे गुस्से से हैंडल किया. दूसरी सिचुएशन आई, मैंने उसे फिर गुस्से से हैंडल किया. फिर वैसी तीसरी सिचुएशन आई, मैंने उसे फिर गुस्से से हैंडल किया. व्हाई? इजंट इट माई पैटर्न? या एक सिचुएशन आई, मैं डर गया, दूसरी सिचुएशन आई उसी तरह की, मैं फिर डर गया. दैट मीन्स मैं अपना एक पैटर्न जनरेट कर रहा हूं. उस पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है और कोशिश करनी है कि उस पैटर्न को तोड़ना है. क्योंकि हमारे जीवन में जब इस तरह की इमोशंस आती हैं तो फिर एंजाइटी या कंपैशन, करेज या फियर. अब फियर कैन बी टैकल्ड बाय करेज, राइट. सो इस तरह से हमें अपने जीवन में घटती हुई हर सिचुएशन को, हर इवेंट को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है. और दोस्तों, जिंदगी तो अपनी है. जब अपनी जिंदगी है तो खुद की जिंदगी के बारे में हम अवेयर तो हो सकते हैं. अब ये चीजें अवेयर होने के बाद लेट्स नाउ टॉक अबाउट फ्यू रेमेडीज. लेट्स टॉक अबाउट फ्यू रेमेडीज. अब रेमेडीज में देखिए क्या आता है. सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं, देयर आर फ्यू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. कुछ तो रेमेडीज डायरेक्ट है और कुछ इनडायरेक्ट है. अब ये पूरी जो इमोशन इंटेलिजेंस की गेम है, इसमें केमिकल्स इन्वॉल्व है. कुछ केमिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल गाबा, राइट, डोपामिन, राइट, एंड देन सेरोटोनिन, राइट, ऑक्सीटोसिन, नॉरपाइनफ्राइन एंड एंडोर्फिन. दीज ऑल आर न्यूरोट्रांसमीटर्स. ये जैसे ही सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन से हमारे ब्रेन में पास्ट मेमोरी के बेस पर ब्रेन कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स सीक्रेट करता है और उन न्यूरोट्रांसमीटर से हमारी पूरी बायोलॉजी इफेक्ट होती है. तो क्या हम इन पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर को खुद सीक्रेट कर सकते हैं? यस, वेरी ट्रू. फर्स्ट, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, काइंडली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ये एक बड़ा ब्यूटीफुल वे बता रहा हूं मैं आपको कि इमोशंस आएंगी, स्ट्रेस आएगा, सिचुएशंस आएंगी, आपकी इमोशन दौड़ेंगी, भागेंगी ऊपर नीचे. उसको पहले ही अपना एक स्टोर हाउस तैयार रखो, अपना एक रिजर्व्ड सिस्टम तैयार रखो कि जिससे बॉडी उसको झेलने के लिए तैयार है. फॉर एग्जाम्पल, आप कार चलाते हो तो उसमें शॉकर्स लगे हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हैं. ऐसा नहीं कि गाड़ी सीधी चिमटे पे चल रही है, नो, वो उसके शॉक एब्जॉर्बर्स है. उसी तरह हमें भी अपने कुछ शॉक एब्जॉर्बर लगा के रखने हैं. सबसे पहला लगता है फिजिकल एक्टिविटी. सुबह उठिए, उठते ही 1 या 2 गिलास पानी पीजिए और पानी पीने के बाद सीधा अपना फ्रेश हो जाइए और ग्राउंड में चले जाइए. ग्राउंड नहीं जा सकते, कंपाउंड में हो सकता है. कंपाउंड में नहीं जा सकते, कमरे में हो सकता है. स्किपिंग कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आसन कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, डांस कीजिए. लेकिन डेली 30 से 35 मिनट जरूर अपने आप को फिजिकल एक्सर्शन में लाइए. उससे क्या होगा? यू विल प्रोड्यूस एंडोर्फिन्स एंड डोपामिन. अब डोपामिन एक मोटिवेशनल केमिकल है, करके देखिए. अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी करते, एक बार स्टार्ट करेंगे ना, विद इन 2-3-5 मिनट्स आपको अच्छा लगने लगेगा. बिकॉज दोज केमिकल्स आर, योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग दोज neurotransmitters, and further it is sending message to your body, and your body is becoming rejuvenated, revitalized, and you are enjoying that, right? Now first is physical activity, at least once on alternate days. अगर आप हफ्ते में सारा दिन नहीं कर सकते तो हफ्ते में 4 दिन कीजिए. उसके बाद हम आते हैं दूसरी चीज पर, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन. यस, अब मेडिटेशन को बोलते सभी हैं कि मेडिटेट करो, बट हाउ?
मेडिटेशन की एक मैं छोटी सी एक टेक्निक आपको बताना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड, उसको विपस्सना भी कहते हैं और उसी को माइंडफुलनेस भी कहते हैं। हालांकि दोनों की थोड़ी पद्धतियों में फर्क है, बट यस, मूल रूप से वो एक ही बात है, दैट यू वॉच योर ब्रेथ। डेनियल गॉलमैन बहुत क्लियरली अपनी किताब में लिखते हैं, और भी बहुत से लोग, विक्टर फ्रैंकल, डेनियल गॉलमैन, इवन कलाम साहब ने इसका जिक्र अपनी बुक्स में किया, बिकॉज ही यूज्ड टू मेडिटेट। और अगर आप कर्म योगी की बात करें, ही ऑल्सो यूज्ड टू मेडिटेट। और आपके आसपास देखिए कितने लोग हैं जो इस तरह की पद्धतियों को, इस तरह की स्ट्रेटेजीज को अपनाते हैं और उनका जीवन बहुत बढ़िया है, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद योर पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड meditation. If you meditate, you are going to make new nerve cells. You are going to make new nerve cells and neurocircuits. Those neurocircuits will give you a defined life. Right? उसमें आपने कुछ नहीं करना है, आराम से किसी अच्छी जगह पर बैठ जाना है. It can be in the evening, it can be in the morning. Morning में आप एक्सरसाइज कीजिए, evening में after dinner also you can find a place where you can sit in सुखासन. सुखासन मीन्स आप चौकड़ी मार के बैठिए, वो ज्यादा बेहतर है अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो आप चेयर पर बैठिए. और उसके बाद यू नीड टू कीप योर स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट एंड यू नीड टू जस्ट ब्रीथ इन एंड देन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड देन ब्रीथ आउट. उसमें आपने जोर नहीं लगाना है. एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डू यू ब्रीथ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Nowadays we are, most of us are into shallow breathing. Shallow breathing means we breathe in and from here we breathe out. We breathe in and we breathe out. But the real breathing is basically when you breathe in, your tummy goes out. When you breathe, out, your tummy goes up. You're going to breathe in, tummy goes in. So that is actual breathing. और उस ब्रीदिंग को करने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, लेकिन जैसे ही आप ये माइंडफुलनेस करेंगे, इसके साथ आपको उसकी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, बिकॉज डीप ब्रीदिंग calm down your emotions, right? So always practice for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. You can take it up to half an hour or more than that, right? It's simply, you just sit, watch your breath, breathing in. You can just observe your belly. आंखें बंद ही हैं, लेकिन आपकी belly बाहर आ रही है. आप अपनी belly पे फोकस कीजिए या nostril पे, यहां पे बिल्कुल जहां से hot air, when you breathe in, you feel cool air. When you breathe out, you feel hot air. तो उसको आप breathe in, breathe out, breathe in. सिर्फ आपने breathe in और breathe out करते हुए अपनी breath को वॉच करना है. वॉच मीन्स आंखों से नहीं, अपने मन की आंखों से उसे वॉच करना है. दैट ब्रीद इन, ब्रीद आउट. थॉट्स एरप्ट होंगे, लेट देम कम लाइक क्लाउड एंड लेट देम गो लाइक क्लाउड, बट यू जस्ट कीप सिटिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. सर्टनली इट विल हेल्प यू आउट. नेक्स्ट, you can go for prayer, you can go for chanting, you can chant om, you can go for गायत्री मंत्र. मतलब वो कितने और तरीके हैं. आप प्रेयर भी कर सकते हैं. एक बहुत अच्छी 10-15 मिनट की प्रेयर भी आपको बहुत बढ़िया इमोशन बैलेंस करने के लिए हेल्प कर सकती है. उसके बाद शेयरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. शेयरिंग इज केयरिंग. फाइंड आउट अ गुड फ्रेंड, योर स्पाउस, योर फैमिली मेंबर्स, योर पेरेंट्स. किसी के साथ अगर आपको कोई इमोशन तंग कर रही है, कोई मूड आपको तंग कर रहा है, कोई फीलिंग्स प्रोलॉन्ग हो रही है, परसिस्ट कर रही है, काइंडली शेयर. अब शेयरिंग में भी 2 तरीके हैं. यू कैन शेयर वर्बली, यू कैन शेयर व्हाइल राइटिंग. बिकॉज पुराने जमाने में हम डायरी लिखा करते थे. आप अब भी लिख सकते हो, अपने फोन में आप मेमो रख सकते हो, उसको लॉक करके रख सकते हो. आई मीन देयर आर सो मेनी वेज दैट यू कैन calm down yourself, because writing therapy, पहले हम लेटर्स लिखते थे, याद रखिए, अब हम लेटर्स नहीं लिखते हैं. और इतनी इंपॉर्टेंट है ये टूल कि while writing it's action. Thinking is not action, but writing is action. It comes under action. So when you write your feelings, and when you write your feelings, it dissipate. It helps you to calm down those feelings. So writing is good. Then
रीफ्रेमिंग योर थॉट्स। हर चीज की हम कंप्लेंट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, या सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे या लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे या कंप्लेंट्स करेंगे। हम कंप्लेंट्स की बजाय सजेशन भी दे सकते हैं, हम क्रिटिसिज्म की बजाय उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें तो स्वीकार ही कर सकते हैं। फायदा क्या? फायदा क्या? जस्ट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस नेगेटिव केमिकल्स इन यू, और उससे सबसे बड़ा केमिकल है कॉर्टिसोल, HPA ग्लैंड, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड एड्रेनल। आपको बार बार नेगेटिव मैसेजेस मिलते हैं, आप कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करते हैं। आप जितना क्रिटिसाइज करेंगे, जितनी कंप्लेंट्स करेंगे, जितना अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेंगे, श्योरली आप अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ नेगेटिव केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे। Afterwards, it is positive self-talk. Positive self-talk and reframing both are same. You can go for either positive self-talk or you can go for negative self-talk. And then kindly do not evade your emotions. Kindly do not evade your emotions. बहुत important point है. You know, my dear friends, when we drink alcohol, when we smoke, any type of addiction, even playing video games for long hours, sitting in front of the computer or television watching reality shows, Big Boss, मैं सीधी बात कर रहा हूं, न्यूज, कंटिन्यूसली वॉचिंग न्यूज, क्राइम पेट्रोल, इस तरह के जो सीरियल्स जो नेगेटिविटी देते हैं, जिसमें क्राइम बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, इन सब चीजों को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बेहतर है। अदरवाइज भी अगर आप ये सब देखते हैं और रात को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इन सब चीजों को देखो, टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड एट ऑल। मैं भी तो आपसे इस वक्त टेक्नोलॉजी के साथ बात कर रहा हूं, मैं भी उसे यूज करता हूं, बहुत से लोग उसे यूज करते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग, मैं भी उनमें से एक हूं, कुछ साल पहले मैं भी यही करता था, बहुत से लोग उसे ओवर यूज करते हैं। वो कहते हैं ना, यू बिकम द मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी और यू विल बिकम द सर्वेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये आपने देखना है कि आप उसके मास्टर बनते हैं या उसके सर्वेंट। सो काइंडली यूज इट केयरफुली, यूज इट केयरफुली। यू नो, इन मीडिया, यू नो, ये चुप हो जाइए, ये कीजिए, वो मत कीजिए, कौन हो तुम, ये वाह वाह ब्ला 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 ब्ला। अब ये सारा कुछ आपको क्या लग रहा है कि आपको बड़ी खुशी दे रहा है, फिर आप क्रिटिसिज्म करते हो, ये रॉन्ग है, ये राइट है, वो सही है, वो गलत है। व्हाई? उसी वक्त में आप प्राणायाम कीजिए, उसी वक्त में आप मेडिटेशन कीजिए। सो काइंडली स्पेसिफाई योर लिमिट्स, दैट व्हाट यू गोइंग टू सी एंड व्हाट नॉट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कुछ भी काम ना आए, देन गो एंड सी अ काउंसलर, गो एंड सी अ साइकोलॉजिस्ट। सिंपल सी बात है। अगर ये चीजें हम नहीं अप्लाई कर सकते तो एक ना एक दिन हमें साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या किसी काउंसलर की जरूरत पड़ेगी। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें और अपने जीवन में उतारें। डियर फ्रेंड्स, परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, बाहर की फोर्सेस को हम नहीं रोक सकते। एक्सटर्नल फोर्सेस आर बियॉन्ड माई कंट्रोल, बट in any situation, freedom to choose is in my hand, isn't it? But how you're going to choose? How I feel, I will choose. If you feel great, your choice will be based on wiseness. If you feel low, depressed, anxious, depressed, आपकी चॉइस सही नहीं होगी। सो डियर फ्रेंड्स, काइंडली सी ऑल दोज टूल्स, वर्क ऑन द गिवन स्ट्रेटजीज एंड मेक योर लाइफ इमोशनली बैलेंस्ड। टिल देन, हैव अ नाइस डे।